Are you able to see this screen? Yes, sir. So we are starting from the point where we discussed the topics earlier, and जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग के बारे में था, और उसमें हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था यहाँ पे, जिसमें we have seen the use of fork system call. So I am once again just brushing up that concept कि how can we make use of that system call. ये था, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक फोर्क के साथ जो है वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है. तो since this program is having the name fork1.c, so obviously when we are running this program, so upon execution of the first fork statement, ये वाला जब execute होगा तो a child process of this fork1.c will be created, and that will be a mirror replica of this fork1. तो बिल्कुल इसी का क्लोन होगा. फिर उसके बाद हियर ऑनवर्ड्स, इस पॉइंट के बाद से, क्योंकि अब वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो चुका है, तो दोनों आगे प्रोसीड करेंगे एंड बोथ ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द सेकेंड फोर्क. ठीक है, तो पेरेंट भी एग्जीक्यूट करेगा और चाइल्ड भी क्रिएट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट प्रोसेस है दैट विल आल्सो क्रिएट अनदर चाइल्ड प्रोसेस, and child will also create another process, another child process. So total 4 जो processes हैं, they'll be lying in the RAM, and all these processes are competing with each other, so we cannot say that which out of these 4 will be getting the turn first. Of course we are having the mechanisms by which we can slightly delay the execution of certain programs, making it sure that others are getting the chance. So that kind of provisions are there, that we'll see later on. But you understand if we are making use of fork 2 times, so we are having 4 programs lying in the RAM. If we are executing only one fork, so it is creating only 2 processes. One is the parent, where originally we have written fork, and second is the child, which is the outcome of execution of that fork as part of parent process. तो अगर हम 3 बार यूज करते हैं तो 2⁻³ मतलब टोटल 8 प्रोसेस क्रिएट होंगे, और अगर हम 4 बार यूज करते हैं तो 2⁴ 16 प्रोसेस क्रिएट होंगे. नाउ व्हेन एवरी प्रोसेस is having this printf statement common, so that is why we will be getting this welcome to system call programming as outcome of every process. So since because of these 3 fork system calls, we are having total 8 processes, that means 8 times we must be getting welcome to system call programming. ठीक है, so we can simply just compile this program. और ये मैंने आपको कंपाइलेशन का बताया था कि CC या GCC कंपाइलर है, एंड अगर हम खाली CC fork1.c करते हैं तो इट इज ऑलवेज पुटिंग द एग्जीक्यूटेबल कोड अंडर द नेम a.out. तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और अगर हम चाहते हैं कि विद एवरी कंपाइलेशन अ न्यू प्रोग्राम शुड बी जनरेटेड, तो उस केस में वी कैन name the object file also with the use of -o option. So we are writing cc fork1.c -o fork1. So this program is created, and now we can run this program. So you can see 33617, and one more is coming before syscalls $. That is the first statement. So total 8 times we are having welcome to system call programming. Fork जो है ये एक integer returning function है. Normally इसमें आप ये लिख सकते हैं k is equal to 4, और हमने यहाँ पे कोई इंटीजर रिटर्निंग फंक्शन, अगर उसके हम रिटर्न वैल्यू को वी डोंट विश टू होल्ड इन सर्टेन वेरिएबल, so we can directly use it as if as we have used in this case. We are not much interested what is being returned by the fork. We are simply interested to know the outcome of fork, that is the creation of a child process. अगर कभी हमें इसका रिटर्न वैल्यू होल्ड करनी तो क्या वैल्यू रिटर्न होती है, तो जब फोर्क एग्जीक्यूट होता है तो ये एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, और उसकी जो PID है, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो ये फोर्क सिस्टम कॉल रिटर्न करता है. तो
तो अब क्योंकि ओरिजिनली जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोग्राम में केवल एक फोर्क स्टेटमेंट यूज किया है, k इज इक्वल टू फोर्क, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली आपके पास प्रोग्राम एक है जिसको हम कहेंगे कि ये तो फिलहाल एक पेरेंट प्रोसेस ही है। पेरेंट भी अभी इसको नहीं कहेंगे क्योंकि चाइल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ही पेरेंट कहते हैं। तो ये मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम है, और जब मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ तो उसमें k इज इक्वल टू फोर्क जो स्टेटमेंट है वो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, और उसकी जो पीआईडी है न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड की, वो k वेरिएबल को रिटर्न हो जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्लोन होगा पेरेंट प्रोसेस का, तो ऑब्वियसली जो कोड हमारे पास पेरेंट में है द सेम कोड विल बी देयर इन केस ऑफ चाइल्ड आल्सो। द सेम थिंग इज ट्रू विद वेरिएबल्स आल्सो, बिकॉज वहां पे अगर हमने एक कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, लेट अस सपोज इंट k, और हमने लिखा है k इज इक्वल टू 4, तो मेरा जो ओरिजिनल प्रोग्राम था जिसको हम पेरेंट कह सकते हैं, उसमें भी वेरिएबल k है, और द सेम कोड सिंस देयर इज इन चाइल्ड प्रोसेस, तो वहां पे भी वेरिएबल k है। तो जो k वेरिएबल है पेरेंट में, तो इसके पास पीआईडी होगी चाइल्ड प्रोसेस की इस वेरिएबल के पास, लेकिन अगर चाइल्ड प्रोसेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे पीआईडी जो है वो 0 होगी k वेरिएबल में। ठीक है, तो ये एक ऐसा फीचर है जिसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे आप लोगों ने जब सी में स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ी होगी, तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में हम लोग ये पढ़ते हैं कि every sequence of character terminated by /0, because if you make the comparison between character array and string, so that's the single difference. In case of character array we are having discrete characters and we are not having a occurrence of /0 at any point and in any location of that array. But if we are having a string, so the last character must be /0, which is a null terminator. So that gives a logic to this array that this entire array should be treated or can be treated as a single string, as a single entity, and that is a string. तो इसलिए वहां पे आप केवल एरे का नाम लिख देते हैं और वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है क्योंकि वहां /0 है। तो इसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं जब भी आपसे स्ट्रिंग हैंडलिंग के प्रोग्राम बनवाए जाते हैं कि आप उसमें चेक करिए कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, या आपको अपर केस को लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना, या somebody is asking you to take some input, some name as input, and write the abbreviated form of that name on the screen. Say if Anil Kumar Singh is you have entered, so it is simply printing AK Singh on screen. So that kind of programs we always write with the use of big exploitation of this feature, that the sequence of characters is terminated by /0. The same thing is true with this case also, कि when we use k is equal to fork, तो यहाँ पे k जो है उसमें it is always holding the return value, और ये return value दोनों ही केसेस में अलग अलग होती हैं। पेरेंट के केस में it is holding the PID of the child process, लेकिन चाइल्ड के केस में यही k वेरिएबल 0 होता है। तो इसका मतलब है अगर दोनों में कोड कॉमन है, and if we are putting the condition like if k is greater than 0, so this condition will be true only in case of parent process, but it will not be true in case of child process. So if you are having a code which is common in both the cases for parent and for child also, and you wish that certain section of the code should execute as part of parent and other section of the code should execute as part of child, so you can simply put a condition like if k is greater than 0 then do this, else do this. तो obviously else जो do this है that will be the part of the child process, और if k is greater than 0 this condition will be true in case of parent, तो जो आप parent के में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो वी कैन सी द एग्जांपल आल्सो कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो s इज इक्वल टू फोर्क है, लेट मी open this program in editor. Am I audible ना? Are you getting it? जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। Please keep giving feedback so that I can understand. Yes, network connectivity is there and you are listening to me. Otherwise, there is no use if unilaterally I am proceeding with my lecture. Yes, sir. Okay. हाँ, तो बस केवल इतना कह देना yes sir, nothing else is required. तो इसमें if I am putting the condition like if s is greater than 0, obviously this condition will be true only in case of parent process. So we are writing printf
there is a function called get PID. जब इस फंक्शन को यूज करते हैं तो जिस भी प्रोसेस में ये रन हो रहा होता है या एग्जीक्यूट होता है उस प्रोसेस की PID जो है डिस्प्ले हो जाती है ऑन स्क्रीन। तो क्योंकि ये सेक्शन जो इफ s is greater than 0 this is executing will be executed as part of parent process, तो that's why I'm printing the message I am parent and my PID is this, ठीक है। और इसमें I am also printing ये यहाँ पे मैंने s को प्रिंट कर दिया क्योंकि पेरेंट में ही s की वैल्यू जो है वो PID ऑफ चाइल्ड होगी। else पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होगा एज पार्ट ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे वन मोर printf I am putting and that is supposed to be executed as part of child process। तो इसमें मैं लिख देता हूँ I am child with PID %d and the PID is again क्योंकि ये चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट होगा तो वो अपनी PID जानने का उसके पास एक ही तरीका है, to make use of get PID function। Let me put /n also। फिर एक और इसमें स्टेटमेंट you see here it is my parent as PID। Now how come this child will get the information about its parent PID? So for that purpose also we are having a function and that is get PPID। The name itself is explanatory that get PPID is get parents PID, get PPID। So we are having two functions, one is get PID which when executes is displaying the or returning the PID of the प्रोसेस वेयर इट इज एग्जीक्यूटेड, जिसका ये पार्ट है उसकी PID को डिस्प्ले कर देगा। अगर वहां गेट PPID करेंगे तो उस प्रोसेस की पेरेंट PID को डिस्प्ले कर देगा। सो दिस अगेन आई एम क्लोजिंग एंड इस स्टेटमेंट को हम कमेंट कर देते हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और हियर आल्सो आई विश कि यहाँ पे हम न्यू लाइन कैरेक्टर डाल दें। तो देखिए जो यहाँ पे अगर मैंने लिखा होता आई एम पेरेंट विद PID तो यहाँ पे पेरेंट की PID पता चल जाएगी और उसके बाद उसके चाइल्ड की PID कैसे मालूम चलेगी, S से। हालांकि इस पेरेंट के पेरेंट की PID कैसे मालूम चलेगी कि इफ आई इंसर्ट वन मोर स्टेटमेंट एंड वो इन बिटवीन आई एम पेरेंट एंड माई चाइल्ड हैज PID, इन दोनों के बीच में अगर एक नया स्टेटमेंट डाल दूं वहाँ गेट PPID कर दूं तो पेरेंट की भी पेरेंट की PID पता चल जाएगी। बट एनीवेज विल सी इट लेटर ऑन। Let me compile this program and show the execution। अब इसमें पेरेंट का मैसेज पहले आया, दैट मीन्स पेरेंट हैज गॉट द टर्न फर्स्ट, और वहां पे जो इफ s इज ग्रेटर देन 0 वो कंडीशन उसके केस में ट्रू थी, तो उसने क्या प्रिंट किया, आई एम पेरेंट एंड माई PID इज 3922 एंड माई चाइल्ड हैज PID 3923। ये किसके थ्रू हमने प्रिंट किया था, वेरिएबल s के थ्रू। चाइल्ड में क्या एग्जीक्यूट हुआ, आई एम चाइल्ड विद PID 3923। अब देखिए दिस इज जस्ट एंडोर्सिंग व्हाट वी आर सेइंग इज कि पेरेंट के पास जो फोर्क ने रिटर्न किया है वो PID ऑफ चाइल्ड ही है। तो यहाँ पे देखिए उस वेरिएबल s को प्रिंट किया तो वी आर गेटिंग 3923, जबकि वही जो है चाइल्ड के कोड में जब हमने गेट PID फंक्शन यूज किया तो वहां पे भी 3923 आया, क्योंकि चाइल्ड की जो अपनी PID उसने अपनी प्रिंट करी और उसके पास तो गेट PID के अलावा देयर इज नो वे ऑफ प्रिंटिंग इट्स ओन PID, तो 3923 उसने प्रिंट कर दिया। इसके पेरेंट की PID जो है 2121 किस लिए आ रही है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, बिकॉज आइडली तो इट शुड कम एज 3922, लेकिन ये नहीं आई। क्यों नहीं आई, दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो फिलहाल वन मॉडिफिकेशन आई वुड लाइक टू मेक इन द प्रोग्राम सो दैट व्हाटएवर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3923 के बाद माय पेरेंट हैज PID 3922 आना चाहिए, तो वो आए, तो वो आएगा अभी। पर आप ये याद रखिएगा कि इस केस में 2121 आया है, ठीक है। तो इसका डिस्कशन क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, दैट आई विल लेट यू नो।
तो यहाँ पे सिर्फ हम इतना कर रहे हैं कि आई एम पुटिंग वन मोर सिस्टम कॉल दैट इज स्लीप. सो वी आर pausing this program to sleep for 5 seconds. Why we are putting it? It's a sort of delay. तो ये हमने इसलिए डाल दिया कि जैसे आपने जो पहले रिजल्ट देखा था उसमें पेरेंट का एग्जीक्यूशन आपने पहले देख लिया, क्योंकि जो स्क्रीन थी उससे पेरेंट का एग्जीक्यूशन आपको पहले दिखाई दिया था. जैसे मैं अभी आपको अगर दिखाना चाहूँ दोबारा से उस स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे पेरेंट का एग्जीक्यूशन पहले हो गया, पेरेंट एग्जीक्यूट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद टर्न जो है चाइल्ड का आया. तो अब पेरेंट वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो चाइल्ड ने किसी और पीआईडी को दिखाया कि वो उसके पेरेंट की पीआईडी है. ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने सिंपल एक मॉडिफिकेशन किया प्रोग्राम में और मैंने पेरेंट के एग्जीक्यूशन को डिले कर दिया है, क्योंकि आई एम पुटिंग स्लीप. तो स्लीप विल पुट द पेरेंट टू स्लीप फॉर 5 seconds एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू मेक श्योर दैट चाइल्ड इज गेटिंग द टर्न फर्स्ट. बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों रैम में एग्जिस्ट करते हैं क्रिएशन के बाद, so which out of them will be executed, that depends कि किसको CPU slot पहले मिली. क्योंकि हम लोगों ने प्रोसेस लाइफ साइकिल में जाना था कि all these processes which are ready for execution, they are forming a ready queue, and the top one in that queue will be the getting the turn first. और जो इसकी जो एल्गोरिथम है वो राउंड रॉबिन टाइम शेयर्ड है. और मैंने एक एग्जांपल आपके क्लास में बताया था कि let us suppose I am taking your class in BTech second year, and 80 students are sitting before me, and I am having very limited resources, maybe having 5 books only, which I need to share among all the students of my class. So obviously I have to have some algorithm so that I should be fairly enough for everybody, and I should make sure that everybody is getting equal amount of turn or equal amount of chance for having access of my books. So I can fix some time कि ओके मैंने ये 5 किताबें जो हैं एक बच्चे को दे दी और मैंने कहा 1 दिन के बाद आपको वापस रिटर्न करना होगा. लेट अस सपोज दैट बॉय और गर्ल इज हैविंग द रोल नंबर 1. फिर जब उसका टर्न ओवर हो जाएगा तो द सेम सेट ऑफ बुक्स विल बी गिवन टू द नेक्स्ट रोल नंबर, देन नेक्स्ट रोल नंबर, एंड दिस विल बी अ साइक्लिक ऑर्डर. सो व्हेन आई विल बी रीचिंग द लास्ट कैंडिडेट ऑफ माय क्लास with roll number 80, after that once again I'll come back to roll number 1, because I know that ki whatever time I have given, that was not sufficient to read out all the 5 books. So probably he or she needs more time. So second chance she'll get, and third chance she'll get. But every time before getting the chance, after availing the chance should be given to the next person. तो आपको जब चांस मिला तो आपने कंप्लीट किया या ना कंप्लीट किया, आपने एक उसका नोट कर लिया कि ये पेज नंबर्स थे जो मैंने इतना पढ़ लिया था. उसके बाद वो बुक आपने रोल नंबर 2 वाले को दे दी, फिर रोल नंबर 3 वाले को दे दी. एवरीबडी इज हैविंग अ बुक मार्कर विद हिम और हर, and there it is mentioned that up to this page he or she has studied that book. तो जब भी वो बुक दोबारा उसके पास आएगी, तो क्योंकि उसके पास पहले से ही वो इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे कि कहाँ तक पढ़ा था, उसके ऑनवर्ड्स वो फिर से रिज्यूम कर लेंगे. ऐसे ही यहाँ पे होता है कि माइक्रोप्रोसेसर तो एक है या वो फाइनाइट नंबर है. मतलब सिंपलिसिटी के लिए आप इमेजिन करिए कि एक है. अगर हम 2 कहेंगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा. मान लीजिए एक है और प्रोग्राम्स जो हैं वो मान लीजिए 50 हैं, तो इसी माइक्रोप्रोसेसर को सबको एग्जीक्यूट करना है. तो अगर पहले प्रोग्राम को लेके उसको कंप्लीशन तक का अगर ले तो बाकी के सारे प्रोग्राम क्या होंगे, वो उनका जो एग्जीक्यूशन है वो हॉल्ट हो जाएगा. तो जिन लोगों ने सबमिट किया है उनके पास एक बड़ी पॉज आएगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अंदर कोई क्यू है या नहीं है. व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग इज कि वी आर इनपुटिंग द कमांड in this way, and when I press enter I am getting the result on screen. तो अगर ये जो हमने कमांड दी बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट होता है या प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, तो अगर वो प्रोसेस जो है उसको माइक्रोप्रोसेसर मिला ही नहीं तो रन नहीं हो पाएगा. तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी गेटिंग द रिजल्ट ऑन स्क्रीन. यू विल गेट ओनली व्हेन the code corresponding to this command or the process corresponding to this command is totally executed and it has gone to terminate state. लेकिन ऐसा करने के बीच में कई बार वो प्रोसेस जो है वो उसको माइक्रोप्रोसेसर मिलता है और उसका टर्न ओवर होता है, फिर माइक्रोप्रोसेसर मिलता है, फिर टर्न ओवर होता है. तो बार बार उसके लिए हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक ही बार में हम प्रोसेस को माइक्रोप्रोसेसर दे देंगे तो बाकी के जितने भी प्रोसेस हैं उनको तो बहुत वेट करना पड़ेगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी शुड बी फेयर फॉर एवरीबडी. तो हमने उस प्रोसेस को केवल 2 माइक्रोसेकंड या 3 माइक्रोसेकंड के टाइम क्वांटम के लिए वो माइक्रोप्रोसेसर दिया. अब उसमें जितना वो हो पाया, उसके बाद का जितना भी स्टेटस था दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड इन द स्टैक एरिया, और उसके बाद चांस विल बी गिवन टू द नेक्स्ट प्रोसेस. अब जब ये पूरे साइक्लिक ऑर्डर में कंप्लीट होके वंस अगेन द फर्स्ट प्रोसेस गेटिंग द टर्न,
तो जो इसने स्टैक में जितना स्टेटस पुश किया है वो पॉप हो जाएगा. सो वंस अगेन इट विल रीगेन द ओरिजिनल स्टेटस कि अप टू दिस पॉइंट दिस वाज ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स इट विल रिज्यूम द एग्जीक्यूशन. जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने उस किताब का बुक मार्कर पे या कहीं पे आपने उसका पेज नंबर नोट कर लिया, और जब वो किताब दोबारा आपको मिली तो आपने उस पेज के ऑनवर्ड्स ही जो है पढ़ाई करनी है, तो आपने सीधे उस डेटा को रेफर किया जहां आपने पेज नंबर लिखा था. तो अगर वहां 23 लिखा था तो इसका मतलब 23 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो 24 ऑनवर्ड्स आपने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया. तो इसका मतलब है कि अगर एक कंप्लीट आपको बुक करनी है तो आपका 3-4 बार में टर्न आएगा. ठीक है. आपको बुक अगर परमानेंटली डेडिकेट कर दे तो आपके जो बाकी के क्लास के जो क्लासमेट्स होंगे उनको बहुत वेट करना पड़ेगा. तो ये उनके लिए अनफेयर होगा. तो सबको बराबर बराबर चांस देते हैं, और इसी को अगर इमेजिन करिए कि वो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ऐसा होने लगे तो ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि एवरीबडी विल बी हैविंग द इल्यूजन दैट ऑल द टाइम ही और शी इज हैविंग द बुक ऑन स्क्रीन ऑन द टेबल. ठीक है. प्रैक्टिकली थोड़ा सा रियलाइज करना मुश्किल है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल क्लास. लेकिन अगर आप सोचें कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में या मिली सेकेंड्स में जो है ये सारी शेयरिंग हो रही होती, तो आपकी तो पलक झपकने में भी सेकेंड्स लगते हैं, तो माइक्रो सेकेंड्स में भी नहीं हो पाता है. तो माइक्रो सेकेंड्स में अगर कोई ऐसी चीज होती कि जो आपके सामने हटे और फिर से आ जाए, तो जब तक बाय द टाइम व्हेन यू विल बी ओपनिंग द आईज, तो आपको तो हमेशा किताब अपने सामने ही मिलेगी. तो यू विल बी हैविंग दैट इल्यूजन दैट ऑल द टाइम यू आर हैविंग द बुक अवेलेबल ऑन योर टेबल, बट इट्स नॉट एक्चुअली. द सेम थिंग इज ट्रू विद कंप्यूटर्स आल्सो, कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन वो इतनी जल्दी और इतनी रैपिडली स्विच होते हैं कि सबको ये लगता है कि उसका प्रोग्राम जो है इस टोटली एग्जीक्यूटेड, मतलब एक बार उसको टर्न मिला वो पूरा रन हो गया और तुरंत जो है, क्योंकि आप कमांड देते हैं और जैसे एंटर करते हैं रिजल्ट आ जाता है. तो ये तो आप रियलाइज ही नहीं करते कि बैक एंड पे जो सर्वर है जो आपको आपके प्रोग्राम को रन कर रहा है, वो आपके अलावा उस समय 50 और प्रोग्राम को भी रन कर रहा है. लेकिन 50 के जो यूजर है उनको सबको यही इंप्रेशन है कि मुझे तो सर्विसेज जो है वो निर्बाध मिल रही हैं, और मैं जब कमांड टाइप करता हूँ तो इमीडिएट रिजल्ट आ जाता हूँ. तो ये क्लियर है ना. तो ये यही जो है प्रोसेस लाइफ साइकिल इसको हम लोग कहते हैं. अब इसमें जो पेरेंट प्रोसेस है और जो चाइल्ड प्रोसेस है, उनको हम पेरेंट चाइल्ड उनके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज तो दोनों प्रोसेसेस ही हैं और दोनों जो है दे आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. तो उसमें टर्न किसको मिलेगा, दैट डिपेंड्स कि किसका चांस पहले आ जाए. तो अगर किसी एक का चांस पहले आ गया, उसको टर्न मिल गया तो वो रन हो गया. जैसे यहाँ पे पेरेंट का चांस पहले आया तो पेरेंट रन हो गया. अभी हमने इसमें क्या किया था कि जी एडिट को यूज करके मैंने उसमें डिले डाल दी थी, और डिले डालने से क्या हुआ कि अब ये जो इफ एस इज ग्रेटर देन 0, अगर पेरेंट को टर्न पहले मिलेगा भी तब भी दिस टाइम इज मेकिंग इट श्योर कि टर्न शुड बी गिवन टू द चाइल्ड, और जब चाइल्ड को मिलेगा तो दिस सेगमेंट विच आई एम हाईलाइटिंग विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इसका मतलब चाइल्ड का फिर एग्जीक्यूशन एंश्योर हो जाएगा बिफोर पेरेंट. सो आई एम जस्ट क्विटिंग दिस प्रोग्राम, वंस अगेन रिकंपाइलिंग दिस प्रोग्राम. तो अब इसको रन कर रहे हैं 4.2 को. देखिए अभी चाइल्ड वाला जो मैसेज है वो पहले आ रहा है, आई एम चाइल्ड विद PID 3982, माई पेरेंट हैज PID 3981. अब जो है क्योंकि वो फिर से टर्न पेरेंट के पास गया, और वो जो टाइम डिले, क्योंकि अब चाइल्ड तो है नहीं तो कंपटीशन रह नहीं गया, तो केवल पेरेंट जो है वो बार बार उसको टर्न मिलता रहेगा CPU स्लॉट्स का, और उसमें फिर उसका जैसे ही वो स्लीप से बाहर आएगा तो अगला स्टेटमेंट क्या है, आई एम पेरेंट एंड माई PID इज 3981, और माई चाइल्ड हैज PID 3982, ये भी उसने राइटली प्रिंट कर दिया. तो इसका मतलब है कि अब यहाँ आप कंपेयर करें कि चाइल्ड भी कह रहा है कि इट्स पेरेंट्स PID इज 3981, और पेरेंट तो बता ही रहा कि मेरी PID ये है और मेरे चाइल्ड की PID ये है. तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को इंडोर्स कर रहे हैं. पहले क्यों नहीं हुआ था, दैट इज द मेन क्वेश्चन. तो पहले इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पेरेंट का जो एग्जीक्यूशन था दैट हैपेंड बिफोर चाइल्ड प्रोसेस. तो उससे क्या हुआ, पेरेंट जो है टर्मिनेट हो गया एग्जीक्यूट होके. अब व्हाट विल हैपन इफ द पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड इज डेड, then what will happen with that child, that child will become orphan. So here too we are having the concept of orphan process. So this child had become a orphan process because the parent died before the child. ये यहाँ पे ये मैसेज एग्जीक्यूशन के साथ ही पेरेंट टर्मिनेट हो गया. अब जब चाइल्ड का टर्न आया तो उसने अपनी अपनी PID तो प्रिंट कर दी, लेकिन पेरेंट की PID इसलिए नहीं प्रिंट कर पाया क्योंकि पेरेंट तो था ही नहीं, वो डेड हो चुका था. तो अब क्वेश्चन राइजेस कि फिर इसने किसकी PID प्रिंट करी. तो कन्वेंशनल यूनिक्स में ये होता है कि जब भी कोई प्रोसेस ऑर्फन बनता है
तो उसकी पेरेंटहुड जो है विल गेट ट्रांसफर टू अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इनिट प्रोसेस, INIT, एंड दिस प्रोसेस हैज द PID 0। ये ट्रेडिशनल यूनिक्स में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो उबंटू में ये काम जो है एक और डेमन करता है। डेमन जो है DAEMON, डेमन हम उनको कहते हैं जो कि सिस्टम प्रोसेस होते हैं एंड दे आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, ठीक है, ऑल द टाइम। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम प्रोसेस कौन से होते हैं, जो सिस्टम आपके लिए चलाता है। जैसे कि मेरे इस टर्मिनल को फंक्शनल बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे तमाम प्रोसेस चला रहा है। वो प्रोसेस मैंने नहीं शुरू किए, दे हैव बीन स्टार्टेड बाय द कर्नल, सो दे आर रेफर्ड टू एज सिस्टम प्रोसेस, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट टर्मिनल स्पेसिफिक। उसको किसी यूजर ने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए उसके टर्मिनल से वो बाइंड नहीं है। लेकिन जो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया लाइक फोर्क 2, फोर्क 1, ये मेरे प्रोसेस थे। कोई कमांड रन कर रहा हूं मैं अपने टर्मिनल से, तो ये मेरा प्रोसेस है, तो वो जो है यूजर प्रोसेस कहलाएगा। जैसे कि एक मैं कमांड देता हूं PS। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस समय मेरे सिस्टम पे दो प्रोसेस चल रहे हैं। एक तो PS कमांड इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ प्रोसेस, तो उसका ये आया और यहाँ पे उसकी PID आ गई। और दूसरा जो bash which is the shell which is continuously connecting me to the kernel, because of that only I am getting this syscall dollar on my screen, और मैं कोई काम कर पा रहा हूँ। और तो इसकी PID क्या है 3416। तो इसका मतलब है कि ये दो प्रोसेस जो हैं दे आर द यूजर प्रोसेस। और ये क्यों यूजर है, क्योंकि आप देखिए कि इनके टर्मिनल टाइप फाइल TTY वो टर्मिनल टाइप फाइल होती है, और ये मेरे टर्मिनल की फाइल है करस्पॉन्डिंग। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यूनिक्स और लाइनक्स व्यूज एवरीथिंग एज ए फाइल, तो इवन हार्डवेयर टर्मिनल इज आल्सो अ फाइल। तो उसके लिए तो वो इस फाइल के लिए ये प्रोसेस चल रहा है, इस फाइल के लिए प्रोसेस चल रहा है। ये फाइल है क्या, बेसिकली आपका टर्मिनल है। और अगर मैं इसमें एक कमांड देता हूँ PS-E, और इसके आगे थोड़ा पेजिनेट कर देता हूँ मोर करके, क्योंकि वरना इतना ज़्यादा स्क्रॉलिंग होगी कि आप देख नहीं पाएंगे प्रॉपरली। तो अब अगर देखिए तो इसमें इसको पहले मैं थोड़ा एक्सक्लूसिव मोड में कर दूं सो दैट यू कैन सी द अपर पोर्शन। तो PID तो ठीक है 1 2 3 4, TTY आ रहा है। TTY वाले कॉलम में क्या आ रहा है, जैसे वहां पे PTS/1 आ रहा था जो पहले मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया था, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। इसका मतलब ये सारे प्रोसेस जो हैं दे आर नॉट टर्मिनल स्पेसिफिक। So what are they? They are the system processes because they are not terminal specific. And who has started them? It is kernel only which has started them. ठीक है। तो at one point of time you will see certain process where in this column under this TTY you will be having some character terminal type also. जैसे कि further मैं आपको दिखाता हूँ, because this will list my process also. जैसे एक यहाँ पे TTY7 भी दिखा रहा है, TTY1 भी दिखा रहा है। तो ये जो है ये यूजर स्पेसिफिक वाले हैं। लास्टली ये जो PTS1 है ये मेरा था, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अभी आई बिलीव कि ये आपको क्लियर है कि सिस्टम प्रोसेस और यूजर प्रोसेस क्या क्या होते हैं। जो कर्नल स्टार्ट करता है वो सिस्टम प्रोसेस है, जो हम स्टार्ट करते हैं यूजर प्रोसेस है। और इस कॉन्टेक्स्ट में यू माइट हैव अंडरस्टूड कि जो फोर्थ जो हमने स्लीप को यूज किया था जस्ट टू cause certain delay in the execution of parent process so that child is executing first and we are saving that child to become orphan process. लेकिन अगर वो ऑर्फन बन जाता है तो क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि वो फिर 2121 PID किसकी थी। तो लेट मी चेक कि हु हैज द PID ऑफ 2121। सो इट इज अप स्टार्ट। ये जो कमांड मैंने ऊपर लिखी है PS-E मैंने पहले एग्जीक्यूट करके आपको दिखाई। प्रोसेस स्टेटस -E एवरी प्रोसेस। मैं सभी प्रोसेस खाली अगर मैं PS कमांड देता हूं तो आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दोस प्रोसेस व्हिच आर वर्किंग फॉर मी, व्हिच हैव बीन इनिशिएटेड बाय मी। तो ये तो दो यही वाले थे खाली जो मेरे टर्मिनल पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे PS-E करते हैं तो जो मेरे हैं वो तो आएंगे, उसके अलावा जो सिस्टम पे जितने भी चल रहे हैं एवरी इंफॉर्मेशन यू आर डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, तो उसमें वो सिस्टम प्रोसेस भी लिस्ट हुए थे। अब एक कमांड होती है grep, जैसे इफ आई जस्ट सी द प्रोग्राम, कोई अगर इसमें ऐसा प्रोग्राम हो जिसको मैं देख सकूं एक बार, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अभी अगर मुझे कोई कहे कि इसमें मुझे सर्च करना है एक स्ट्रिंग, तो लेट अस सपोज इफ आई एम सर्चिंग अ स्ट्रिंग कॉल्ड int, हम ये सर्च कर रहे हैं कि ये पैटर्न इसके अंदर अकर होता है कि नहीं होता है। तो मैं क्या देता हूँ
grep then pattern that you need to search and the file name in which you need to search the pattern. ठीक है, तो प्रेसिंग एंटर, तो इसने वो सारी लाइंस जो है डिस्प्ले कर दी जहां पे वेयर एवर वी आर हैविंग द अकरेंस ऑफ आईएनटी की सीक्वेंस. ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रीटिंग आईएनटी एज ए होल वर्ड, सो दोज स्टेटमेंट्स व्हिच आर लाइक printf वेयर आईएनटी इज नॉट अ वर्ड रादर इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो वो वहां पे नहीं डिस्प्ले होती, केवल वही लाइंस आती जिसमें इंट लिखा होता. तो दो सो मेनी ऑप्शंस आर देयर बट दैट इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट हियर. हमें तो केवल ये देखना है कि इसका मैंने यूज फिर क्या किया. तो मैंने जो कमांड आपको पहले लिख के दी जहां पे आई वाज सर्चिंग 2121, तो मैंने की सीक्वेंस यूज किया ps-e, देन आई एम यूजिंग पाइपलाइन सिंबल. ठीक है, ये पाइपलाइन सिंबल है जिसको आप सी में जैसे और करते थे डबल पाइपलाइन यूज करते थे. तो आपने पाइपलाइन सिंबल लगाया फिर ग्रेप. अब अगर आप खाली इस कमांड को देखें तो व्हाट इज मिसिंग इन दिस केस, फाइल नेम. इसके बाद फाइल नेम होना चाहिए था वेयर आई विश टू सर्च 2121, बट एक्चुअली इन द एब्सेंस ऑफ दैट फाइल नेम deliberately we have done it. Why? Because in this case grep will get the output over which it has to operate upon, the input over which it has to operate upon from the previous command. तो ps-e का जो भी आउटकम हमने स्क्रीन पे देखा था, now that is supplied as input to grep command. और now grep is doing what? It is searching 2121 in those contents which have been supplied by previous command. तो जो उसका आउटपुट था प्रीवियस कमांड का वो ग्रेप के लिए इनपुट बन गया और उसने केवल उस लाइन को डिस्प्ले कर दिया जिसमें 2121 है. तो विच वन इज दैट लाइन? इट्स अप स्टार्ट. सो यू कैन अंडरस्टैंड in केस ऑफ ट्रेडिशनल यूनिक्स द पेरेंटहुड ऑफ एनी ऑर्फन चाइल्ड इज ऑलवेज ट्रांसफर टू init process, but in case of ubuntu which is the variant of unix as a linux operating system, इसमें this work has been assigned to a daemon called upstart. ठीक है, ये इस प्रोसेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि इट हैज टू टेक केयर ऑल द ऑर्फन प्रोसेसेस. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इसका जो 2121 है वो दैट वाज शोन बाय दैट चाइल्ड व्हिच आई हैव व्हिच वी हैव सीन इन द फर्स्ट एग्जांपल. जब मैंने उसको रन किया तो पेरेंट पहले रन हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो चाइल्ड ऑर्फन बन गया. चाइल्ड ऑर्फन बन गया तो उसने अपनी पेरेंटहुड 2121 दिखाई, क्योंकि उसने सही कहा कि उसका पेरेंट अब जो है वो जो ओरिजिनल था वो नहीं है, रादर क्योंकि वो डेड हो चुका है तो इट हैज बिकम अ ऑर्फन प्रोसेस और इसकी जो पेरेंटहुड है इज नाउ लाइंग इन द हैंड ऑफ अपस्टार्ट. तो अपस्टार्ट हैज बिकम द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड प्रोसेस. तो इज इट क्लियर कि ऑर्फन प्रोसेस क्या होते हैं? So please endorse so that I can understand. Yes, you are listening to me. Atul, are you saying something? Please endorse whether you are getting my point or not. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अरे तो इतना एक्नॉलेजमेंट में देर क्यों भाई? बहुत फास्ट एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, इसलिए बहुत जल्दी जवाब दिया करो. मतलब यू आर गेटिंग इट ना? I can see sir. I can see Anand and Amit and Som. So many names are there. Akriti, आप लोगों को आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं जो हमने एक्सप्लेन किया? मतलब इट्स नॉट, अगर कोई ऐसा है कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो सो दैट वी कैन री एक्सप्लेन द कंसेप्ट, बिकॉज हैविंग बग एट दिस टाइम एंड नॉट रिमूविंग इट will cause a big bug in later days. So it's better that whatever problem you are having right now in understanding the concept, please let me know so that I can re-explain. I can understand that right now you have not studied operating system till now, and I have started this system called programming. From my side, I am trying to make the concept as simple as possible in context to operating system, क्योंकि जो process life cycle है that is the topic of operating system, but of course we are practically using a operating system which is called Linux. तो इसलिए यहाँ पे जो पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस, ये कंसेप्ट जो है आते हैं. सर व्हाट इज पीआईडी? पीआईडी इज बेटा प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर. देखिए जैसे कि हम अपने क्लास में वी आर असाइनिंग रोल नंबर्स टू एवरीबॉडी बिकॉज वी मे बी हैविंग 2-3 अमित इन द सेम क्लास, इवन सरनेम्स आर आल्सो सेम. ठीक है, तो उनका यूनिकनेस किससे मेंटेन होता है? रोल नंबर से. वैसे ही लिनक्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं इनके मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नंबर्ड.
उनके कोई ना कोई उनका नंबर होता है। जैसे कि यूजर्स जो हैं उनके लिए एक नंबर है कॉल्ड यूआईडी नंबर, ग्रुप जो है उसके लिए ग्रुप आईडी नंबर। वैसे ही ये डायनेमिक नंबर होता है। यूआईडी और जीआईडी तो जो है वो परमानेंट है, क्योंकि वो आपने एक डेटाबेस में लिखा है। जीआईडी जो है वो ग्रुप फाइल में लिखा है, और यूआईडी जो है वो पासवर्ड फाइल में लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो पीआईडी है, जब एक प्रोसेस रैम में क्रिएट होता है, कब क्रिएट होता है, जब हम कोई यहाँ पे कमांड देते हैं, जैसे कि राइट नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग फोर्क 1, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस अ प्रोसेस विल बी क्रिएटेड। सो व्हेन एवर अ प्रोसेस इज क्रिएटेड, Linux operating system will assign a number to that process, and that number is called process identification number, because now here onwards that process will always be identified with that number, because there may be certain other users sharing the same Linux server, and they will also be executing the program with the same name fork1. So how can the how can the operating system make a distinction between fork1 submitted by you and the fork1 submitted by your friend? Because both of these programs are going to the common RAM. So obviously it has to have some mechanism so that it can uniquely identify these processes. So in your case, in my case, if fork1 is taking the PID 123, so obviously if you are executing the same fork1 from your terminal, and let us suppose we are sitting and sharing the same Linux server, तो अगर मेरा 123 है तो आपका 123 कभी हो ही नहीं सकता, वो 124 होगा, 125 होगा, ठीक है। तो PID जो है एक नंबर है जो किसी भी प्रोसेस के साथ अटैच होती है। हु असाइंस इट? इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और जब तक वो प्रोसेस लाइव रहता है, लाइव का मतलब जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता तब तक वो उसकी पीआईडी रहती है। जब वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो नंबर भी रिलीज हो जाता है। अब इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि अगर मेरे प्रोसेस को 123 मिला है तो जब फोर्क 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो 123 अब उसका रेलेवेंस खत्म हो गया, क्योंकि रैम में देयर इज नो प्रोसेस हैविंग द पीआईडी नंबर 123। सो इट मे बी पॉसिबल दैट फ्रॉम अदर टर्मिनल इफ एनी प्रोग्राम इज क्रिएटेड, so the same number 123 may get assigned to that process, but at any time this will be unique. This is simple, this is similar to what we have in case of IP addresses. वो जो है वो डायनेमिक होती हैं। एक बार आपको अगर कोई आईपी मिली तो जरूरी थोड़ी ना कि कल आप आईपी, जब कल आप दोबारा काम करेंगे या शाम को या 1 घंटे बाद दोबारा से इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको वही आईपी मिलेगी, वो कोई और आईपी मिल जाएगी, और जो आपको पहले आईपी मिली थी वो किसी और को मिल जाएगी। तो ये, लेकिन किसी भी समय जितने भी यूजर्स होंगे उनकी आईपी जो है यूनिक होंगी। वैसे यहाँ पे है, किसी भी समय जितने भी प्रोसेस रैम में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी आईपी जो है यूनिक होगी, और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दो प्रोसेस की सेम आईपी, सेम पीआईडी हो। तो ये क्लियर है अब कि पीआईडी क्या होता है? Yes. इसीलिए What जब हम, हाँ बताइए। what is the parent process? हाँ, पेरेंट प्रोसेस जो जो हमने कहा कि जैसे फोर्क 1 को मैं रन कर रहा हूँ, तो फोर्क 1 के अंदर ही मैंने जो है एक कमांड लिख रखी है k इज इक्वल टू फोर्क 1, फोर्क सॉरी, और ब्रैकेट। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, चाइल्ड एक एक नया प्रोसेस क्रिएट कर देगा। तो फॉरगेट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड। हमने रन क्या किया था, फोर्क 1, उसमें रन क्या हुआ, उसके अंदर स्टेटमेंट क्या था, k इज इक्वल टू फोर्क। तो जैसे ही वो फोर्क एग्जीक्यूट हुआ तो एक प्रोसेस क्रिएट हो गया अलग से, और बिसाइड्स दिस ओरिजिनल प्रोग्राम फोर्क 1, इसके अलावा एक और प्रोसेस रैम में क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको एक पीआईडी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जैसे प्रोसेस क्रिएट होता है उसकी एक पीआईडी होती है। और जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसका कोड भी वही होगा जो इस फोर्क 1 का है, क्योंकि वो इसकी मिरर इमेज ही होती है। लेकिन हम कंसेप्चुअली इसको क्या कहते हैं, क्योंकि फोर्क 1 हैज गिवन बर्थ टू दैट प्रोसेस, द चाइल्ड प्रोसेस, उसके थ्रू जो है ये नया प्रोसेस निकला है। तो हम क्या कहेंगे कि फोर्क 1 हैज बिकम पेरेंट, और जो नया क्रिएट हुआ चाइल्ड, नया क्रिएट हुआ प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज द चाइल्ड प्रोसेस, क्योंकि इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द कोड ऑफ फोर्क 1, क्योंकि उसमें रन हुआ था k इज इक्वल टू फोर्क। तो फोर्क 1 पेरेंट बन जाएगा और जो नया प्रोसेस क्रिएट हुआ वो चाइल्ड बन जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी अदर क्वेरी? अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी एक क्वेरी जो है किसी बहुत सारे लोगों की जो डाउट्स हैं उनको सेटिस्फाई करती है, बिकॉज दे मे बी थिंकिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, दे मे बी हैविंग द सेम काइंड ऑफ डाउट। तो अगर आपको कुछ लगता है तो पूछ लीजिए। वी हैड वेरी लिटिल इंटरेक्शन इन पास्ट, बिकॉज अदरवाइज तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमसे क्लास में मिले होते और हमारी हमारी जो है फिजिकल क्लासेस हुई होती तो प्रॉब्ली जो हमारा कंफर्ट लेवल है वो और अलग टाइप का होता। बट एनीवेज,
मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट एवर आई एम टीचिंग वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, सो इन रिस्पेक्ट टू योर फीडबैक I cannot proceed. I need your feedback so that I can understand कि yes whatever I am explaining you are understanding. तो अभी अगर आपको किसी को और कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभिषेक, रीचा और आई कैन सी द नेम और रोशनी, अंजलि, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए। रितेश, ज्योतिरादित्य, दिव्यांशु, see you put your photograph on your team profile so that I can see your faces. अभी कईयों में तो ऐसा होता है कि पिकाचू आता है डिस्प्ले। तो ठीक है, ये मैं दोबारा से बस थोड़ा सा ब्रशअप कर देता हूँ, फिर वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। ठीक है, हम लोगों ने जो एक प्रोग्राम डिस्कस किया था दैट वाज fork1.c, और मैंने उसमें बताया था कि हम जब फोर्क को यूज करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये हमने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, प्रोसेस अगर कहें या प्रोग्राम कहें, प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि जब प्रोग्राम रन होने के लिए रैम में आ जाता है तो वो प्रोसेस कहलाता है, प्रोग्राम नहीं कहलाता। तो प्रोग्राम को हम कहते हैं नॉर्मली कि पैसिव एंटिटी है जो रन नहीं होती, जो हार्ड डिस्क पे होती है, लेकिन वो कोड जो इसकी वो इमेज जो रैम में आ जाती है और रन होती है उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में 3 बार हमने फोर्क यूज किया है, तो ये प्रोग्राम जो है 3 प्रोसेस को तो बनाएगा ही, 3 प्रोसेस को जनरेट करेगा। लेकिन अब वो जो 3 प्रोसेस जनरेट होंगे उसमें से जो पहला पहला जो प्रोसेस पहले फोर्क से निकला है उसमें भी तो आगे के 2 फोर्क कॉमन हैं, क्योंकि वो जो पहला फोर्क है वो तो पेरेंट में रन हुआ और पहला चाइल्ड क्रिएट हो गया। अब उस चाइल्ड के अंदर एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? पहले फोर्क के बाद से। और पेरेंट में भी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा? पहले फोर्क के बाद से, क्योंकि पहले फोर्क से ही तो चाइल्ड क्रिएट हुआ। तो अगला स्टेटमेंट पेरेंट में क्या है? फोर्क। और जो नया चाइल्ड क्रिएट हुआ उसमें भी अगला स्टेटमेंट क्या है? फोर्क। तो इसमें से जिसको भी चांस पहले मिलेगा वो एक चाइल्ड और क्रिएट कर देगा। तो जब पेरेंट को मिलेगा तो पेरेंट एक चाइल्ड क्रिएट करेगा, और चाइल्ड जो पहले क्रिएट हो चुका है उसमें भी पहला स्टेटमेंट फोर्क है, तो जब वो रन होगा तो उसमें भी एक चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब 2 अगर हुए तो 4 प्रोसेस बन गए। अब आप इमेजिन करिए कि अब हमारे पास रैम में कितने प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस हैं। एक ओरिजिनल, ठीक है, उसके बाद उस ओरिजिनल से एक चाइल्ड क्रिएट हुआ था पहले फोर्क की वजह से, उसके बाद इन दोनों ने एक एक प्रोसेस फर्दर क्रिएट किया, एक पेरेंट का और एक चाइल्ड का, तो टोटल 4 हो गए। अब चारों का अगला स्टेटमेंट क्या होगा? फिर एक लास्ट फोर्क होगा, तो ये फिर से एक एक प्रोसेस क्रिएट कर लेंगे। तो 4 हैं तो 4 और क्रिएट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो इसीलिए 8 बार जो है वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग आएगा, क्योंकि हर एक में लास्ट फोर्क के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? प्रिंट एफ, वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि 8 प्रोसेस हैं और 8 में टर्मिनेशन से पहले ये स्टेटमेंट है, तो 8 बार वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। और हर एक और जो हमने यहाँ पे फोर्क को यूज किया है उसमें हमने उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो कैप्चर नहीं करी है। रिटर्न वैल्यू कैप्चर करने के लिए हम उसमें एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में लिख के रिटर्न वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। क्या रिटर्न करता है? तो पेरेंट अगर एक ओरिजिनल प्रोसेस है उसके अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट आपने फोर्क यूज कर रखा k इज इक्वल टू 4, तो जब वो रन होगा तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा और नए चाइल्ड की पीआईडी जो है वो पेरेंट के पास वेरिएबल के थ्रू आ जाएगी। ओरिजिनली के इज इक्वल टू 4 रन किस में हुआ? पेरेंट में। उस समय तक तो कोई चाइल्ड था नहीं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन का आउटकम क्या था कि एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो गया। तो अब चाइल्ड में भले के इज इक्वल टू 4 लिखा है, लेकिन चाइल्ड में ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा क्योंकि ये तो पेरेंट में रन हो चुका है। तो चाइल्ड और पेरेंट अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से करेंगे? इसके अगले स्टेटमेंट से। और अगर इस 4 के बाद हमने अगले कोई फोर्क ना लिखे होते ऊपर और केवल वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग लिखा होता, तो अगला स्टेटमेंट पेरेंट क्या प्रिंट करता? वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग। और चाइल्ड क्या प्रिंट करता? वेलकम टू सिस्टम कॉल प्रोग्रामिंग। तो दोनों से एक एक प्रिंट होता तो 2 बार प्रिंट हो जाता और हमें मालूम चल जाता कि 2 प्रोसेस क्रिएट हुए हैं। 4 बार जब प्रिंट होता तो 4 प्रोसेस क्रिएटेड हैं, और 8 बार प्रिंट हो रहा है तो 8 प्रोसेस क्रिएटेड है। ठीक है, तो अब इसकी रिटर्न वैल्यू इसकी रिटर्न वैल्यू जो हमने होल्ड करी वेरिएबल के में, जो कि पेरेंट प्रोसेस में है, यही के वेरिएबल चाइल्ड में भी है, लेकिन उसकी वैल्यू वहां 0 है।
तो अगर हमने यहाँ कंडीशन डाली है इफ के इज ग्रेटर देन 0, तो ये कोड तो पेरेंट में भी है और यही कोड चाइल्ड में भी है। लेकिन पेरेंट में ये कोड जो है वो ट्रू होगा क्योंकि के की वैल्यू वहाँ 0 से ज्यादा है, क्योंकि उसके पास क्या है, चाइल्ड की पीआईडी विच इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर। वेयर एज इन केस ऑफ चाइल्ड, उसमें तो k इज इक्वल टू 4 रन ही नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो पेरेंट में रन हुआ था तभी तो चाइल्ड क्रिएट हुआ। तो उसमें ये वेरिएबल k की वैल्यू क्या होगी, 0। हालांकि दोनों में वेरिएबल कॉमन है, कोड कॉमन है। तो अब उसका अगला स्टेटमेंट चाइल्ड में क्या है, इफ k इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो ट्रू होगा ही नहीं चाइल्ड के केस में, तो उसमें रन क्या होगा, एल्स पार्ट। लेकिन पेरेंट वाले प्रोसेस में क्या रन होगा, इफ k इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि वहां ट्रू है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि भले दोनों में कॉमन कोड हो, लेकिन पेरेंट ये करे और चाइल्ड ये करे, तो वो दोनों चीजें जो हैं अलग अलग, वो हम इफ एल्स स्ट्रक्चर में डाल देंगे। तो एक में एल्स पार्ट रन होगा तो वो वाला पार्ट रन हो जाएगा, और एक में इफ पार्ट रन होगा तो पहला वाला पार्ट रन हो जाएगा। तो इज इट ओके? फिर एक Yes, sir. हाँ, फिर एक कंसेप्ट ऑर्फन का आया था कि वो तो बिल्कुल देखिए प्रैक्टिकल, इसको अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी रियल लाइफ है उसमें ऐसा होता है कि एनी अनफॉर्चुनेट चाइल्ड हु इज लूजिंग हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स बिकम्स ऑर्फन। तो द सेम कंसेप्ट इज ट्रू ओवर हियर। यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू पेरेंट्स बिकॉज वी आर हैविंग सिंगल पेरेंटिंग इन दिस केस। तो अगर किसी चाइल्ड को क्रिएट करने के बाद जो पेरेंट है वो डेड हो जाए और चाइल्ड स्टिल अलाइव है, तो अब चाइल्ड तो ऑर्फन ही कहलाएगा। But on the lighter note, it is written in the books कि Linux is not harsh as much as human beings are. So what it is doing is it is letting anybody else to take care of that orphan child. And who is that else part? Who is that else process? In case of traditional Unix, it is always init, init, which is supposed to be the first process started by the kernel, and that has the PID 0. लेकिन उबंटू में या और वेरिएंट्स ऑफ लाइनक्स में क्या है कि दिस हैज बीन गिवन टू अनदर डेमन प्रोसेस जो अगेन सिस्टम प्रोसेस है, और उसे हम क्या कहते हैं, अप स्टार्ट। तो दैट टेक केयर्स ऑफ ऑर्फन प्रोसेस, तो वो उसकी पेरेंटहुड जो है ओन कर लेता है। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ा कि यहाँ पे वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ ऑर्फन। ठीक है, एक और इसमें कंसेप्ट है, वो है ज़ोंबी का। ज़ोंबी जो आप लोगों ने हॉलीवुड मूवीज देखी थी, ज़ोंबीज होते हैं उसमें, ठीक है, ये हमारे यहाँ भी होती हैं। तो ज़ोंबी जैसे भटकती हुई आत्मा। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि अभी तक जो हम लोगों ने देखा यहाँ पे, अगर हमने एक आपको दिखाया कि अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं कि ऑर्फन ना क्रिएट हो, तो हमने ये श्योर कर लिया कि चाइल्ड जो है वो पहले टर्मिनेट कर जाए पेरेंट से। और इसके लिए हमने क्या किया, चाइल्ड के पेरेंट के एग्जीक्यूशन को स्लाइटली डिले कर दिया टू मेक श्योर कि इंडीड चाइल्ड शुड गेट द टर्न एंड शुड कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्लीशन है, दिस इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, इसने अपने टर्मिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन पेरेंट को नहीं दी। आई मीन यू हैव सीन द कोड में केवल आपने स्लीप डाला है, लेकिन पेरेंट को ये नहीं मालूम कि चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इससे क्या, इसका क्या रिपरकेशन है, इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस टेबल होती है जहां पे जितने भी एक्टिव प्रोसेस हैं उनकी एंट्रीज उसके अंदर होती हैं। तो अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस जो है वो बिना पेरेंट को बताए टर्मिनेट कर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो प्रोसेस टेबल से रिमूव नहीं होती, एंड अननेसेसरली इट इज ऑक्युपाइंग द रिसोर्सेज इन प्रोसेस टेबल। जबकि वो टर्मिनेट हो चुका है कायदे में, तो उसको रिमूव हो जाना चाहिए। पर रिमूव क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पेरेंट को पता ही नहीं है कि वो टर्मिनेट हो चुका है। अगर अच्छा, अब ये इसकी एंट्री रिमूव कब होगी, जब इसका पेरेंट खुद टर्मिनेट हो जाएगा। जब पेरेंट टर्मिनेट होगा तो पेरेंट की भी एंट्री रिमूव हो जाएगी और चाइल्ड की भी एंट्री रिमूव हो जाएगी। पेरेंट जो है वो रन किस पे हो रहा था, उसको शेल चला रहा था, क्योंकि आपने सबसे पहले जैसे मैंने फोर्क वन रन किया तो कहाँ किया, कमांड लाइन पे। कमांड लाइन किसकी वजह से आ रही है, शेल की वजह से। तो इस फोर्क वन का पेरेंट कौन था, शेल। और फोर्क वन का फर्दर चाइल्ड आपने अपनी प्रोग्राम के अंदर फोर्क सिस्टम कॉल को यूज करके किया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये देखें कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस, तो इस चाइल्ड प्रोसेस का ग्रैंड पेरेंट कौन है, शेल, क्योंकि वो तो किसी सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल वर्जन से जनरेट हुआ है, तो वो सी का प्रोग्राम उसका पेरेंट बन गया। लेकिन वो सी का प्रोग्राम रन किसने किया, शेल ने। तो वो हु इज पेरेंट ऑफ दैट सी प्रोग्राम, वो तो शेल था। तो शेल इसका मतलब ग्रैंड पेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये हायरार्की इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।
अब कमिंग बैक कि अगर उसकी एंट्री प्रोसेस टेबल से रिमूव नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट को पता नहीं कि उसका चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, मतलब मर चुका है, तो दैट चाइल्ड बिकम्स ज़ोंबी प्रोसेस, बिकॉज इसकी एंट्री वहाँ एग्जिस्ट कर रही हो, तब तक एग्जिस्ट करती रहेगी जब तक पेरेंट खुद ना डेड हो जाए। अब ये अननेसेसरली जो है रिसोर्सेज को ऑक्युपाई किए हुए, तो ज़ोंबी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी चाइल्ड ने उसकी मृत्यु की खबर अगर उसके पेरेंट को नहीं मिली तो वो ज़ोंबी बन जाता है, क्योंकि उसके मोक्ष के लिए कोई तर्पण नहीं किया गया। अगर उसकी इंफॉर्मेशन पेरेंट को होती तो वो ज़ोंबी ना बनता। तो हम लोग बाद में देखेंगे कि ज़ोंबी प्रोसेस कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे हम ज़ोंबीज का और ऑर्फन्स का क्रिएशन अवॉइड कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि दो सिचुएशन हैं। चाइल्ड अगर जो है सरवाइव करता है, पेरेंट डेड हो जाए, तो वही है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ऑर्फन बन जाता है। और अगर पेरेंट जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लाइव है, और चाइल्ड डेड हो जाए और उसकी इंफॉर्मेशन पेरेंट को ना हो कि वो डेड हो गया, तो उसकी आत्मा भटकती है और वो ज़ोंबी बन जाता है। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि उसकी एंट्री अननेसेसरली प्रोसेस टेबल में ऑक्युपाई रहती है और वो अननेसेसरली रिसोर्सेज को ब्लॉक करे रहती है। कायदे में तो जब इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, सो ऑल द एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू इट शुड बी रिमूव्ड, और तो प्रोसेस टेबल से भी उसकी एंट्री रिमूव हो जानी चाहिए, लेकिन वो रिमूव नहीं हो पाती। ठीक है, सो विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि कैसे हम ज़ोंबीज के क्रिएशन को अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे ज़ोंबीज क्रिएट होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये ज़ोंबी बन गया। तो ये क्लियर है, इसकी डिटेल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। So here only I am ending my lecture, and maybe possible कि हम किसी और टाइम पे why to stick to Saturday and Monday only। देखते हैं, अगर हो सकता है तो अगर मैं ले पाया तो किसी और डेज में भी क्लासेस जो है इवनिंग में शेड्यूल कर सकते हैं, when you'll be free, so from hostel only you can join me, because my intention is, देखिए, it's a practical class, not supposed to be taught in the lecture manner, but I know that unless until you understand the concept you cannot run it on the terminal। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पहले एक बार ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, देन यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन कंप्यूटर, एंड at the same time I'm requesting कि if you are having laptop, please install Ubuntu so that you can become familiar with Ubuntu, and whatever we are discussing in the class, that you can apply over there. And these things are very important, because not only they are important from programming point of view, but later on when you will study operating system as a subject, you can make application of practical application of those concepts if you have got the concept clear in case of Ubuntu, because ये एक तरीके से आपको पहले से ही ये आपको जो है मैच्योर किया जा रहा है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मुझे लगता है अगर प्रैक्टिकली इफ यू आर साउंड, तो यू कैन very well understand the concept being taught as part of operating system, because whatever we are doing is operating system only, but मैं उसको बहुत lightly और superficially पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, so that you can understand the concept, and by the time you take that subject as a regular subject, you won't be having any problem in understanding those concepts, क्योंकि आपने उसको practically realize कर रखा होगा, और जो चीज़ हम practically realize करते हैं that is having everlasting impact on us। theory तो आती है और चली जाती है। So I'm ending my lecture here only. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.